Good morning, students. It is the your math class, and now we are solving exercise 1.1. Question number first. The given question is minus 2 by 3 multiply 3 by 5 plus 5 by 2 minus 3 by 5 multiply by 1 upon 6. This minus 2 by 3 is a rational number, 3 upon 5 it is also a rational number. Now we are going to solve this expression. So I am write this expression same as it is. Implies that 3 is 3 same, it will be deducted. What will left? Minus का 2 by 5 plus 5 by 2 minus 3 1 जा 3 3 2 जा 6 1 into the 1 1 5 2 जा 10. What will be the LCM from 10? So now how can we solve this LCM? Here is the 10. 10 divided by 5. What will left? 2. So you will write here 2 and minus 2 plus you will write 5 multiply 10 divided by 2. This 10 divided by 2. What will left? 5. 5 will come here minus 1 into this 10 divided by this 10. What will left? 1. 1 will come here. Multiply minus plus minus 2 2 ja 4 plus 5 5 ja 25 minus 1 into 1 1. Implies 10. It is plus का 25 minus 4 minus 1 minus का 5 25 minus का 5 20 divided by 10. 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना बचा आपका 2. तो इसका आंसर क्या आ गया आपका 2. This part is similar to this part. You will try at your home. You will solve self. So now, students, we are coming to question number 2. In this question, write the additive inverse of each of the following. Here are the some rational numbers are given to you. So now we are going to find the additive inverse of these numbers. So how can we find the additive inverse? So yesterday we discussed multiply with a minus. Suppose that a given number is a. How can you find its additive inverse? So you should multiply this given number with a minus. So then minus a is the additive inverse. Similarly, अगर given number is x, so what is the additive inverse of x is minus x. Now let's come to the point. 2 upon 8. Find the additive inverse of 2 upon 8. So additive inverse of 2 upon 8. So this 2 upon 8 multiply with the minus. So minus 2 upon 8. Similarly, minus का 5 upon 9. तो additive inverse of minus में 5 upon 9. तो minus में 5 upon 9 the given number is, so it multiply with the minus. Minus minus plus, so that is 5 upon 9. The given number is, so here is the minus, here is the minus. So we are just solve this minus to minus cancel, so then 6 upon 5. So 6 upon 5, so then additive inverse
6/5, तो 6/5 मल्टीप्लाई विद द माइनस, तो मल्टीप्लाई विद द माइनस, that is 2/. And the remaining part you will try yourself. Okay, student. Now let's come to the question number 3. The question number 3 is verify that minus bracket minus x is equal to x for the value of x is a variable, unknown variable. So the given value of x is 11/15. तो x की इस वैल्यू के लिए हमें इस एक्सप्रेशन को वेरीफाई करना है कि यहाँ पे जो माइनस है मल्टीप्लाई विद द माइनस x बिकम इक्वल टू x. हमें देखना है यहाँ पे कि ये दोनों क्या इक्वल है. बेसिकली तो इक्वल ही है. ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और ये कितना हो गया प्लस x, तो प्लस x इक्वल टू प्लस x. तो जनरली वैसे तो एक्सप्रेशन वेरीफाई है, बट इस वैल्यू के लिए हमें थोड़ा सा करके दिखाना है. तो यहाँ पे देखते हैं. फॉर फर्स्ट एक्सप्रेशन I am taking the left hand side, minus minus x minus minus plus x, and the value of x is 11/15. This is the left hand side, and the right hand side x, and the value of x is 11/15. So both values are equal. Left hand side is equal, left hand side is the plus 11/15. Similarly right hand side plus 11/15. So both the sides are equal. So given expression is verified. Implies that you can write left hand side is equal to a right hand side. It is called left hand side and this is called right hand side. And this part you will solve by hand. Thank you. Now students, come to the question number 4. Find the multiplicative inverse of the following numbers and the rational number. So I need to find the multiplicative inverse of these rational number. So little bit revise the things. What is the multiplicative inverse? So suppose that a number, suppose that a given number is x. So how can you find it rest? Multiplicative inverse. Multiplicative inverse is also called reciprocal. So how to take x negative power? So how can you solve 1/x? Similarly, a how can you find the multiplicative inverse? A की power -1, so then 1/a. Similarly, find the multiplicative inverse of this. So multiplicative inverse of minus का 30. So take minus का 30 and take its negative power. So how can you write 1/- का 30? Similarly, multiplicative inverse of this, reverse it. So multiplicative इज इक्वल टू रिवर्स. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब सपोज अगर ये लिखा हुआ है आपका minus का 30, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 30/1, तो उसको मैंने रिवर्स कर दिया, वही आ गया. इसको भी रिवर्स कर देता हूँ, तो माइनस का 19/30. सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव
इनवर्स इज इक्वल टू रिवर्स कर दीजिए 5 अपॉन में 1 दैट इज 5. Okay, now find the multiplicative inverse of this multiply. First of all, check any number will be deducted or not. No. 5 is prime, 7 is prime, 3 is prime, and 8 is non-prime, but they are not basically deducted. इनके बीच में कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है? माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 50 and 8 7 जा 56. So find the multiplicative inverse of this number. So multiplicative inverse. Reverse it. 56 upon 50. Now student, come to the question number 5, exercise 1.1. Name the property under multiplication used in each of the following. Here are the three parts 1, 2 and 3. Common sign multiply, 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 multiply. So I need to identify which type of property is using here. So in first part, multiply with the 1. Multiply with the 1, 1. Whenever we multiply 1 with any number, expression will not change. It is called the multiplicative identity. Minus का 4 upon 5 multiply with the 1, result will come minus का 4 upon 5. Similarly, 1 multiply with minus का 4 upon 5. Whenever we multiply 1 with any number, result is same. So it is called a multiplicative identity. Because after multiplying with the 1, expression is not changed. Second, 13 upon 17. Multiply minus 2 upon minus का this and minus का this side. But this side it is coming minus the 2 upon 7 is coming first and it is coming at the second position. So here the number is changing their position. It is called the commutative property. It is called the commutative property. Whenever this number coming at the first position, this number is coming at the second position. But here this number coming in the first position and first position number coming in the second position. In this condition, result will remain same, but the position of the terms changing. It is called a commutative property. Second is minus का 19 upon 29 multiply with 29 upon minus का 19. तो 29 upon में minus का 19, it is basically the reciprocal or multiplicative inverse of this. Whenever minus का 19 upon में 29, but you will reverse it. What will come? 29 upon में minus का 19. तो minus से minus डिडक्ट हो गया, इससे ये डिडक्ट हो गया, 29 से 29. तो ये क्या बचा आपका 1. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे ये जो टर्म है वो इसी का क्या है आपका रेसिप्रोकल है, आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है. थैंक यू. Good afternoon students. Now we are going to solve question number 6, exercise 1.1. Question is multiply 6 by 13 the reciprocal of minus का 7 upon 16. यानी कि इस नंबर को मल्टीप्लाई दिस नंबर, इस नंबर को
मुझे मल्टीप्लाई करना है बाय द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस का 7/16। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब ये भी होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पे देखिए ये आपको नंबर दे रखा है रेसिप्रोकल से, यानी कि इस नंबर को मल्टीप्लाई मुझे करना है, इस नंबर को मुझे मल्टीप्लाई करना है इस नंबर के रेसिप्रोकल से, यानी कि पावर -1। 6/13 implies दैट। अब यहाँ पे पावर कितनी आ रही है? -1 हो रही है। तो रेसिप्रोकल इसका कैसे निकालेंगे? इसकी पावर क्या है? माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? रिवर्स हो जाएगा। माइनस का 16/7, 16 6 जा 96 और 13 7 जा 91 माइनस ये क्या आ गया आपका? थैंक यू। Now students, now we are going to start question number 7, exercise 1.1. Tell what property allows you to compute 1/3 multiply bracket 6 multiply 4/3 bracket as this. तो बेसिकली मुझे बताना कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है कि बोथ द नंबर आर सेम। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है बेसिकली? अब देखिए यहाँ पे नंबर जो है, नंबर के प्लेसेस जो है 1/3 6 4/3 वो नहीं बदल रहे हैं, 1/3 6 4/3, बट यहाँ पे जो ब्रैकेट है आपका, ये ब्रैकेट की पोजीशन बदल रही है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थैंक यू, राइट डाउन दो। ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8, exercise 1.1. Is 8/9 the multiplicative inverse of -1/8? क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन में ये आपसे पूछना चाह रहा है कि जो 8/9 है क्या इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इस वाले नंबर का। ठीक है, यानी कि अगर मैं माइनस का 1 और 1/8 का अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालता हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि रेसिप्रोकल पावर -1, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल निकालता हूँ तो क्या वो 8/9 आता है? यस और नो, ये आपको बताना। चलो चेक करते हैं। तो नंबर क्या है? माइनस का 1/8 पावर -1। तो इस फ्रैक्शन में सॉल्व करते हैं। -8 मल्टीप्लाई विद द 1, 8 1 जा 8 प्लस का 1 कितना हो जाएगा आपका? 9 और ये डिवाइड में क्या है आपका? 8 ऐसे पावर -1। अब जिसकी पावर क्या होती है? -1, तो क्या होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं, यानी कि माइनस का 8/9। तो यहाँ पे कितना आ रहा है आपका? 8/9 और यहाँ पे सॉल्व करने में क्या आ रहा है? माइनस का 8/9, यानी कि इस नंबर का, इस फ्रैक्शन का जो रेसिप्रोकल है वो 8/9 नहीं है। 8/9 आ रहा है बट ये प्लस क्या हो रही है? माइनस का। इस वजह से प्लस और माइनस की वजह से जो डिफरेंस है तो हम क्या लिखेंगे आपका? नो। ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर। राइट डाउन। Now come to the question number 9, exercise 1.1. Is 0.3 the multiplicative inverse of 3 1/3? क्वेश्चन मार्क। तो बेसिकली जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन उसी की तरीके से है लगभग। यहाँ पे क्या है कि मेरे को ये बताना है कि जो 1/3 है इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या? पावर -1, क्या वो क्या 0.3 है
या नहीं है, ये मेरे को चेक करना है। यानी कि जब मैं इस फ्रैक्शन को सॉल्व करता हूँ और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालता हूँ तो क्या वो 0.3 आएगा या नहीं आएगा। चलो चेक करते हैं यहाँ पे। तो इस फ्रैक्शन को थोड़ा सॉल्व करते हैं। 3 1/3 और ये क्या है आपकी पावर माइनस का 1, तो 3 3 जा 9 और 9 और 1 कितना हो जाएगा आपका 10/3 और पावर आपकी माइनस का 1। ठीक है ना। अब जब इसकी पावर माइनस में 1 है तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, तो 3/10। अब नीचे कितने जीरो आ रहे हैं आपके, 1 जीरो आ रहा है, तो डेसिमल कितने डिजिट के बाद लग जाएगा, 1 डिजिट के बाद। तो डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगेगा आपका 1, यानी कि 1 के बाद आपका पॉइंट आएगा 0। अब देखो ये और ये वैल्यू दोनों सेम है, यहाँ क्या लिख देंगे, यस, राइट डाउन। थैंक यू। नाउ स्टूडेंट कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, राइट। यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं एक्सरसाइज 1.1 में, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें इनका आंसर देना है। द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, वो कौन सा रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं है, तो उसका आंसर होगा आपका 0। कैसे, यहाँ पे देख लेते हैं जरा। अगर मैं ये 0 है, अगर मैं 0 का रेसिप्रोकल करता हूँ तो रेसिप्रोकल इसका क्या आता है आपका, जो इसका रेसिप्रोकल आता है 0 का, वो आता है आपका 1/0। और किसी भी नंबर को जब मैं 0 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा क्या आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है। और इन्फिनिटी क्या होता है आपका, अनडिफाइंड टर्म होता है। ठीक है ना। इस वजह से मैं 0 का कभी भी क्या रेसिप्रोकल कैलकुलेट नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। सेकंड देखिए, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, वो कौन से रैशनल नंबर हैं जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, एक तो 1 और दूसरा क्या होगा आपका माइनस का 1। देखिए अगर मैं 1 यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं 1 का रेसिप्रोकल निकालता हूँ, यानी 1 का रेसिप्रोकल कितना आएगा, 1/1 और उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ये 1 और ये 1 क्या है आपका सेम है। सिमिलरली अगर इसका रेसिप्रोकल निकालता हूँ तो 1/-1 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ये दोनों क्या है आपके इक्वल है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 1 और -1 का जो रेसिप्रोकल होता है वो आपका सेम होता है। द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू देयर टू द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, वो कौन सा रैशनल नंबर है जो अपने नेगेटिव के इक्वल होता है। तो मान लीजिए इसका आंसर क्या है आपका 0। कैसे, अगर मान लीजिए 0 है, अगर 0 की मैं मल्टीप्लाई कर दूं माइनस से, तो भी इसका आंसर क्या रहेगा आपका 0 का 0 ही रहेगा। तो वो कौन सा नंबर है जो द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, वो कौन सा रैशनल नंबर है जो अपने नेगेटिव के इक्वल होता है, तो वो क्या है आपका 0। थैंक यू, राइट डाउन इट। नाउ स्टूडेंट कम टू द क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 11। द क्वेश्चन नंबर इज 11, फिल इन द ब्लैंक्स, एक्सरसाइज 1.1। तो 0 हैज रेसिप्रोकल, अभी हमने पहले भी डिस्कस किया है कि 0 जो होता है, 0 का रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0 का जो रेसिप्रोकल होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है, और इनफाइनाइट क्या होता है, अनडिफाइंड नंबर होता है। तो 0 हैज नो रेसिप्रोकल। द नंबर दिस आर देयर ओन रेसिप्रोकल, वो कौन से नंबर होते हैं जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं, तो होता है 1 और दूसरा क्या होता है आपका -1। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया है। द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस का 5, तो इसका इसको रिवर्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1/-5। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, और यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर x डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू जो है वो आपके 0 के इक्वल नहीं हो सकती, यानी कि अगर x यहाँ पे 0 हो जाता है तो ये पूरा क्या इनफाइनाइट में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इन्होंने लिख रखा है कि x डज नॉट इक्वल टू 0। तो रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, तो इसका रेसिप्रोकल क्या है हो जाएगा आपका, इसको रिवर्स कर देंगे तो दैट इज क्या आ जाएगा आपका x। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर, जो प्रोडक्ट होता है 2 रैशनल नंबर का वो रैशनल नंबर ही होता है, रैशनल नंबर। द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर, रेसिप्रोकल यानी कोई भी पॉजिटिव नंबर है, अगर आप उसको इन्वर्स करेंगे, आप उसको 1/, करके लिखेंगे तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, इज पॉजिटिव। ओके स्टूडेंट, ये जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 जो है, जिसके अंदर 11 क्वेश्चंस थे, वो कंप्लीट हो गए। आप लोग राइट ऑन रहिए। थैंक यू।